कि कैनो 1 C1 1000 मीटर मेंस है, हीट 1 है और इसमें लेन नंबर 2 में है उड़ीसा के नवबी सिंह, लेन नंबर 3 में है महाराष्ट्र के साद मोहम्मद पटेल, लेन नंबर 4 में है दिल्ली के तरुण, लेन नंबर 5 में है छत्तीसगढ़ के सतीश ध्रुव। सारे प्लेयर्स तैयार। बहुत टफ होता है कैनो को संचालित करना। कयाक एक बार आदमी थोड़ा इजीली मैनेज कर लेता है, लेकिन कैनो को चलाने के लिए और कैनो को स्पीड देने के लिए बहुत स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। इस समय आपकी स्क्रीन पे चारों प्लेयर्स तैयार हैं। हीट 1 है, C1 1000 मीटर मेंस, दूसरी लेन में उड़ीसा, तीसरी लेन में महाराष्ट्र, चौथी लेन में दिल्ली और पांचवी लेन में छत्तीसगढ़ की टीम। इस समय 4 नंबर की लेन में दिल्ली के तरुण आपकी स्क्रीन पे। प्रथम जो आएगा वो सीधे फाइनल जाएगा और दूसरे और तीसरे पोजीशन में जो आएगा वो सेमीफाइनल में आगे बढ़ेगा। इस समय छत्तीसगढ़ के सतीश ध्रुव लेन नंबर 5 में तैयार हैं स्टार्टर के ऑर्डर्स के लिए। पूरा फोकस है, हीट है, देखना पड़ेगा कौन कैसा स्टार्ट लेता है। जनरली स्टार्ट थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी और हार्ड स्ट्रोक के साथ प्लेस लेते हैं जिससे कि गति दे पाएँ अपने अपने कैनोस को। कयाक और कैनो में ये फ़र्क है कि कैनो में नीलिंग पोजीशन पे आप होते हैं। ये रेस स्टार्ट हुई, बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया है सब खिलाड़ियों ने। यहाँ पर उड़ीसा के होंगशांग नयोबी सिंह, महाराष्ट्र के साथ मोहम्मद पटेल, दिल्ली के तरुण और छत्तीसगढ़ के सतीश ध्रुव के दरमियान मुकाबला है। देखिए एक साइड आप कैसे ये जो पैडल होता है इसका एक ही ब्लेड होता है, या आप राइट साइड से स्टीयर करते हैं बोट को पैडल करके या लेफ्ट साइड पैडल करके बोट को स्टीयर करते हैं, कोशिश करते हैं डिस्टेंस कवर करने की। इसकी स्पीड कयाकिंग के मुकाबले बहुत कम होती है। कयाक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है और जो कैनो होता है छोटी सी बोट होती है और इस पर चूँकि नील डाउन आप करते हैं और एक ही साइड आप ब्लेड इस्तेमाल कर सकते हैं बोट के, इसलिए स्पीड कम होती है। लेकिन ये मुकाबला भी और ये स्पोर्ट भी बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स वी हैव सो फार एज वाटर स्पोर्ट्स इज कंसर्न्ड, एंड वी हैव हैड अ नंबर ऑफ गुड प्लेयर्स अक्रॉस द कंट्री in canoeing, but this sport needs lot of efforts, lot of strength, and you must be physically 100% fit. If you don't have that fitness, if you don't have that expertise and practice, you are not going to cover 1000 meters at that speed which you would ordinarily like. So the patience is very important, the strength is very important, and how do you maneuver and how do you steer the boat, that is very, very important. And here we have 1 minute 21 seconds already gone, and the players have not covered 500 meters yet because this boat doesn't travel that fast. And in lane number 4 you can see Delhi's Tarun is trying to forge ahead, take the lead, but it's anybody's game, touch and go, very difficult. And then you have Maharashtra Saad Mohammad Patel in lane number 2. He is also trying his level best, trying to push the water back and steer the boat forward. And that is the beauty of this particular sport, canoeing. And canoeing is also a very, very important sport so far as water sports is concerned. So is rowing. And in this particular competition, we are going to have canoeing, kayaking and rowing. Rowing will be later. And in addition to that, we will have dragon boat exhibition races and shikara races and others. So this festival is going to bring a lot of spectators and the players to limelights, because players have to showcase their talent, and the spectators would definitely love to cheer them up, and they want that the best should win, because otherwise also if you see the sport, this is lane number 2, lane number 4, and you have Delhi's Tarun beautifully steering his boat forward. And see, the water is still, so there is no turbulence, there is no friction, and the boat is easily plying forward, steered by the canoe player. And this is a wonderful sport, and we are going to expect good performance from all the players. Lane number 4, Tarun from Delhi is ahead of others so far. Let's see whether he is able to maintain his lead or not. And it appears that
he's far ahead, and he's not going to have any difficult situation where he can be taken over, or where he can lag behind. I think he's going to cover the distance with ease. जैसा कि आपने सुना हमारे साथी कमेंटेटर से कि ये इसको चलाना बहुत टफ है, इसमें सब कुछ चाहिए। इसमें एक तो घुटने के बल बैठना इतनी देर, फिर पावर लगाना, साथ में बैलेंस करना। आपके में स्किल भी होनी चाहिए, स्टेमिना भी होना चाहिए, स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। इसको मैन्यूवर करना मुश्किल तो है ही। ये तो प्रैक्टिकली जो लोग करते हैं वो खुद भी इस चीज़ को बयान करते हैं। इस समय 4 मिनट 10 सेकंड का टाइम ले चुके हैं और बहुत कंफर्टेबल लीड पे दिख रहे हैं लेन नंबर 4 के दिल्ली के तरुण, और मुझे लगता है बहुत आसानी से ये फाइनल की तरफ जाएंगे। देखिए फिनिशिंग पॉइंट के करीब पहुंचते हुए खिलाड़ी, बहुत ही शांत पानी है, बिल्कुल आदर्श पानी है खिलाड़ियों के लिए, अनुकूल है खिलाड़ियों के लिए पानी, और बहुत ही कंफर्टेबल विन करेंगे ये लेन नंबर 4 में दिल्ली के तरुण। और लगता है लेन नंबर 2 में उड़ीसा के होंगशांग नवबी सिंह हैं। लेन नंबर 3 में महाराष्ट्र के साद मोहम्मद पटेल हैं। लेन नंबर 5 में छत्तीसगढ़ के सतीश ध्रुव है। इस तरह फिनिश करी लेन नंबर 4 में तरुण ने, जो कि दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत ही शानदार प्रदर्शन तरुण द्वारा, और ये सीधे फाइनल पहुंच गए हैं। अब इनको बाकी फाइनल में दमखम लगाना होगा अपने मेडल्स के लिए। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि 5 पानी के खेल होंगे। देखिए इस समय आपके हाईलाइट्स देख रहे हैं, चारों की शुरुआत कैसे